Welcome students, RPS School online classes. Today, if I say Happy Christmas, oh, you're just going to be astonished now. Very surprising, sir. During this Corona period, you are greeting us Happy Christmas. Why? It's a very surprising. आप लोग बहुत सरप्राइज हो रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, हैप्पी क्रिसमस, न्यू क्रिसमस, ये है क्या भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिना लगन की शहनाई बज रही। बात ऐसा है कि जिस चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं वो इसी से कुछ कंसर्निंग है, इसीलिए हमने ऐसा कहा। इज दैट क्लियर? हमने क्यों कहा? क्योंकि ये आपकी चैप्टर से कंसर्निंग है। Students, we shall discuss today concerning your chapter. Chapter's headlines, I told you earlier. Dear Santa, did you get my tweet? You see the tweet. Tweet is the latest technology. Whenever you want to send any kind of message, Twitter, Facebook, WhatsApp, so many medias are going to be used in this scenario. So, this one tweet, is that clear? Dear Santa, Santa you know, I will just explain about Santa, who is Santa, why this word is used. This is you see, it's a kind of poem, it's a poem, and its writer's name is Ken Nesbitt. You see, write down in your notebook, its writer's name, this is a poem. And this poem's writer's name is Ken Nesbitt. He has written this poem, Dear Santa, did you get my tweet? It's a kind of poem in which it is told, whenever you want to communicate with Santa, how you use this process. You want to send some message to Santa because, as you know, Santa just gives a lot of toys, articles for the children's toffees on the eve of Christmas Day. So, he is also a symbol of love, affection, so many things here. So, Santa, it's a message for all children. Whenever you look to Santa, you are going to be very jolly, happily, you just welcome. Oh, Santa came. But is there a real figure of Santa? क्या Santa सही में है? नहीं, ये तो इमेजिनेशन है। हम देखते हैं ना, सेंटा में सेंटा क्लॉज हम देखते हैं, सेंटा क्लॉज, सेंटा को सेंटा क्लॉज के भी नाम से जाना जाता है। यू मस्ट हैव टू बी नोन दिस वन, सिमिलर नेम सेंटा क्लॉज। जैसे आपके घर में आपका नाम अगर राजू है, घर का नाम कुछ और होता है, तो कुछ कुछ नाम से उनको जाना जाता है आपको। उसी तरह इनका सेंटा को सेंटा क्लॉज के भी नाम से जाना जाता है, और भी सारे नाम से। वी हैव जस्ट रिटन ऑन द बोर्ड. यू विल राइट डाउन ऑल द मटेरियल्स इन योर कॉपी. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबसे हमारा यही आग्रह है कि आप अपने नोट्स बुक में जितने भी मटेरियल्स प्रोवाइड किए गए हैं बोर्ड पे, उसको आप लिख लेंगे। अगर जैसे हम आगे बढ़ रहा वीडियो, आप उसको पॉज कर लेंगे और इसको उतार लेंगे आप। सो लेट मी एक्सप्लेन अगेन। डियर सेंटा, प्यारे सेंटा, डिड यू गेट माई ट्वीट? जो आपने भेजा है मैसेज, जो भी मटेरियल्स आपने भेजा है सेंटा को, तो आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं। यू आर आस्किंग द क्वेश्चंस। व्हाट आर यू आस्किंग द क्वेश्चंस? क्या आपने मेरे मैसेज को, मैंने जो ट्वीट किया, आपको वो मिला? In this poem,
it is going to be told that the new latest technology which we are sending all the things concerning Facebook, Twitter, and others also, Instagram. So many devices are going to be here. So I just told you that in this poem, the poet just preferred the old method to send the message rather than the latest one. Why this one? We are discussing here. पोएट ने प्रेफर किया है कि पुराने मेथड से हम किसी चीज को भेजें. What's the old methods there? You just take envelope, you write down some note, some greetings in paper, and just going to be envelope. You paste you see the stamp paper, stamp on this envelope, and you send them. This is the very latest. You see the very old-fashioned pattern. पुराने जमाने में क्या होता था? पुराने जमाने के लिए कुछ समय पहले की बात है, जब हमारे यहाँ ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप वैसे डिवाइस उतने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थे, तो क्या होता था? उस वक्त लिफाफा लिया जाता था, जो हमको ग्रीटिंग्स भेजना है, मैसेज भेजना है, उसको पेपर में लिखा जाता था, उसको हम इन्वेलॉप में डाल देते थे और फिर उसको बंद करके उस पर स्टैंप को लगाकर और तब उस पर एड्रेस लिखकर जिनको भेजना है उनको हम भेजते थे. दिस वॉज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बट दिस हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एज वी ग्रोन अप. सो टेक्नोलॉजी हैज अलाउड अस टू सेंड दिस वन, बट इन टोटल सिनेरियो, in the if you go through all the materials in poem, you will find that poet preferred the old technology rather than the latest one. And he is sending the message. The children sending his message to where? Actually, भेजा कहाँ जा रहा है? तो North Pole में. You see the North Pole. South Pole, North Pole, have you gone through? It is covered with a lot of snow. There's minus 65 degree, minus 85 degree, minus this type of temperature going to be existed now. वहां पर इतनी ठंड रहती है, बर्फ ही बर्फ होता है. वहां कहीं पानी नजर नहीं आएगा, बर्फ ही बर्फ है. Have you gone through all the things in your mobiles also? Isn't it? So we are talking about, अब हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं. We are talking about Dear Santa. That's why Santa has been told by the poet, Dear Santa, did you get my tweet? क्या आपने हमारा ट्वीट को देखा, पढ़ा? Santa, I am asking about the Santa. Let's know in details manner who is Santa. Santa, that is Santa Claus, also known as Father Christmas. ठीक है? Just to look here, Santa Claus को Father Christmas के भी नाम से जाना जाता है, सेंट निकोलस के भी नाम से जाना जाता है, सेंट निक क्रिंगल इस नाम से भी जाना जाता है, और सिंपली सेंटा, या हम सिर्फ सेंटा भी बोल देते हैं तो हम समझ लेते हैं कि सेंटा क्लॉज का नाम. ठीक है? डिफरेंट नेम, जैसा मैंने पहले बताया कि आपका भी एक अलग अलग नाम होता होगा, घर का निक नेम होगा, स्कूल का कुछ निक नेम होगा. दैट इज कंसर्निंग द सेम थिंग विथ दिस वन. जैसा मैंने पहले बताया, सेंट निक, सिंपली सेंटा इज एन इमेजिनरी. अब यहां पर हम लोग आ रहे हैं, इमेजिनरी एक काल्पनिक फिगर है. ऐसा नहीं है कि वो आकाश से हमारे सेंटा क्लॉज आते हैं और बच्चों को मिठाइयां, स्वीट्स एंड टॉफीज, वॉट एवर द टॉयज कंसर्निंग द चिल्ड्रंस दे डिस्ट्रीब्यूट अस. नॉट. दिस इज अ काइंड ऑफ इमेजिनेशन. एक इमेजिनरी फिगर है. वो कहां ओरिजिनेट किया हुआ है, यानी कहां पर इस चीज को
लोगों ने उसका रूप दिया है वो है वेस्टर्न क्रिश्चियन। इन वेस्टर्न क्रिश्चियन कल्चर, क्रिश्चियन कल्चर ईसाई समुदाय में इन लोगों ने एक फिगर दिया, इमेजिनरी फिगर दिया कि वो आते हैं बच्चों के बीच में मिठाइयां बांटते हैं। किस अवसर पर? क्रिसमस डे के अवसर पर, क्रिसमस डे के एक दिन पहले के अवसर पर। सो हु इज सेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स? क्या लाते हैं? गिफ्ट लाते हैं टू द होम्स ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के घर पर लाते हैं ऑन द नाइट ऑफ क्रिसमस, MAS, क्रिसमस, on the night of Christmas Eve or during the early morning hours of Christmas Day. अब इंट्रोडक्शन में हम आ रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन में क्या है? हाउ डू टूडेज चिल्ड्रेन कम्युनिकेट विद सेंटा क्लॉज? ठीक है, हमने तो सेंटा क्लॉज का फिगर दे दिया, लेकिन अब बच्चे जो है कैसे सेंटा क्लॉज से के साथ कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से वो बात करते हैं, isn't it? उस बात को यहां पर पूरा दर्शाया गया है। कैसे? इन सैलिएंट फीचर्स के रूप में। सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नो हु हैज रिटन दिस पोएम, यू विल राइट डाउन, रिटन बाय केन नेस्बिट। What's its name here? As I told you earlier. Second one, it is a funny Christmas poem for kids. एक एकदम मनोरंजन देने वाला, एक आनंद देने वाला क्रिसमस पोएम है बच्चों के लिए, फॉर किड्स। अब हम उसके बारे में आएंगे, पोएम के बारे में। What about the stanzas has been given that was explained in a summarized manner. We will go through this one very carefully and you will get absorbed very well. जब आप इसको देखेंगे, ठीक से समझेंगे हर लाइन को, तो आपको उसका सारा जो पोएम लिखा हुआ है इस टाइटल का, उसमें आपका सारा सार समझ में आ जाएगा, isn't it? Now come this one. These days with the internet and all of the electronics we have access to, it seems kind of slow and old-fashioned. There is these missing here. And all of the electronics we have access to, it seems kind of slow and old-fashioned to write a letter to Santa on a piece of paper. जब हम सेंटा को एक पेपर पर लिखकर, ग्रीटिंग्स लिखकर हम उसको मैसेज भेजते हैं, तो ये लगता है कि एकदम पुराने पैटर्न के रूप में हम उस सेंटा को भेज रहे हैं। क्योंकि क्या करते हैं, उसमें पेपर को यूज करते हैं, पुट इट इन एन इन्वेलप, उसको इन्वेलप में डाल देते हैं और पुट ए स्टैम्प, फिर उसमें स्टैम्प लगा देते हैं। एंड मेल इट टू हिम, और वो सेंटा को हम मेल कर देते हैं। एट द ऑन इट एंड मेल इट टू हिम एट द नॉर्थ पोल। अब हम मेल कहां करते हैं, उस जगह का नाम जो होना चाहिए, वो जगह का नाम है नॉर्थ पोल। जैसा मैंने पहले बताया, जो बर्फ से भरा हुआ प्रदेश है, वहां ठंडी ठंड रहती है वहां। श्योरली देयर मस्ट बी एन इजियर वे, होना चाहिए तो इजियर वे में। इनफैक्ट देयर आर नाउ सीरीज दैट लेट यू सेंड सेंटा एन ईमेल एंड गेट अ रिप्लाई बैक फ्रॉम हिम। अब जब हम स्टोरी जो भी हम भेजते हैं, मैसेज को भेजते हैं सेंटा के पास में, तो लेट यू सेंड सेंटा एन ईमेल एंड गेट अ रिप्लाई बैक फ्रॉम हिम। हम उसके, अब किसी को हम लेटर भेजेंगे, किसी को भी मैसेज भेजेंगे, तो हम भी तो एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें भी कुछ खबर आए, रिप्लाई मिले सेंटा से। बट व्हाट इफ यू पोस्टेड योर क्रिसमस
list on a website or send it by social media like Facebook, Twitter, would he even get it? I'm not really sure. लेकिन वो नॉर्थ पोल में ऐसा भी होता है, कभी कभी इंटरनेट काम नहीं किया, कोई ऐसा चीज टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, वहां नहीं पहुंच पाया, तो हो सकता है ये प्रॉब्लम क्रिएट करे, हमारे द्वारा भेजा गया मैसेज मिला ही नहीं उसको, भले वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हम यूज कर रहे हैं लेकिन उसको मिला ही नहीं, तो मेरा टेक्नोलॉजी क्या हुआ, फेल्योर हो गया वहां. इस दिस सर्कमस्टांसेस जस्ट पोएट सपोर्ट्स द ओल्ड सिस्टम so that the Santa could get this message, whatever was sent by the children. In that very circumstances, what did he tell? I am not really sure, so to be on the safe side. पोइट ने यहाँ एक चीज को दर्शाया कि ये जो हमारी टेक्नोलॉजीज है, वेबसाइट का, जिस सोशल मीडिया से, जिससे हम फेसबुक ट्विटर से भेजते हैं, ये हमारा सेफ साइड नहीं है. Why this is told it is not the safe side? Because any technical problem may be arise concerning this one. There is no network. How could they get them? कभी कभी हमारा नेटवर्क काम नहीं करता तो मोबाइल रहते हुए भी हम उस मैसेज को नहीं देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं. तो सेम मे बी हैपेंड, सेम टू बी हैपेंड दिस फिगर. सो व्हाट द प्रेफरेंस देयर? तो पोइट ने फिर प्रेफर क्या किया भाई, ठीक है हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी काम नहीं किया उस वक्त सर्कमस्टांसेस में, तो क्या करेंगे, हम करेंगे यही, इट्स बेस्ट टू सेंड हिम योर लेटर द ओल्ड फैशन. दिस इज वेरी वेरी रिमार्केबल थिंग. ये बहुत अच्छा होगा कि हम पुराने स्तर से हम उसको यूज करेंगे. पुराना जो हमने बताया था, पेपर लिए, उसको इन्वेलप में डाले, एक स्टैंप लगा दिए, फिर एड्रेस लिख दिए. In that very method, we can use them. So, poet has preferred this way. Isn't it? Isn't it? The old-fashioned way by regular snail mail. Snail mail का मतलब क्या होता है? धीमी डाक. धीमी डाक से भेजना. स्नेल मेल का मतलब होता है धीमी डाक से भेजी जा रही है. धीमी डाक क्या हुआ? जो हम ओल्ड प्रोसेस की यूज कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड द स्नेल मेल. यू सी, स्लो पोस्ट. दिस इज नॉट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, दिस इज द ओल्ड पैटर्न टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग मैनुअली उसको भेजते हैं. सो ऑल द स्टोरीज, ऑल द कंसर्निंग दिस वन पोएम have gone through this moment, and I do hope you absorbed well and you will try the best after reading and absorbing all the materials which had provided to you. And one thing is to be noted, always revise them. I just suggest you all students, you just revise them whatever it is written on this one, and the questions has been provided in book. You will answer them, and that will be checked whenever the class will start. After lockdown, as you know, we are facing COVID-19 problems all over the world. That's why we have to take care about it one and be safe. Precautions should be taken. Prevention is better than cure, so you must maintain it. And online classes, you take the advantage at the optimum level, and you will go through this, all the materials, and you write down questions answers in your notebook. That will be checked, that will be scrutinized whenever the school will be open there. Till then, before ending this session, this class, the next chapter we shall discuss now. So for the next chapter, goodbye and best of luck, all of you. Okay, thanks.